آپ کو صرف خدا کا پروف چاہیے. جی آپ بھی اس دنیا میں موجود ہیں, میں بھی. یہ دنیا ایک گیلیکسی کے اندر ہے, گیلیکسی یونیورس کے اندر ہے. جسٹ لوکنگ ایٹ تھنگس, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا ایکسیڈنٹل ہے یا اس کے پیچھے کوئی خالق ہوگا؟ خالق تو نہیں لگتا, پلازیبل نہیں لگتا مجھے کہ خالق ہو. اچھا, پلوزیبل نہیں ہے. مجھے بتائیے جی کہ اس کائنات کے اندر there is a certain place. So for example, Goldilocks, and that is where our earth is. یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ زمین کا چاند کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ ایسا ہے, اس ایگزیکٹ ڈگری پہ ہے which is 23.5 degrees tilt, کہ وہ زمین کے پانیوں کو کھینچ کے زمین میں سیلاب بھی نہیں لے کے آتا, اور اتنی تحریک بھی رکھتا ہے کہ زمین میں انسان کے موسم بھی بدلتے ہیں, کہ چاند تھوڑا سا بڑا ہو, چاند تھوڑا سا چھوٹا ہو, چاند جہاں پہ ہے اس سے تھوڑے سے نزدیک ہو یا اس سے تھوڑا سا دور ہو. In any variation, life will not exist as we know it. What do you think? Chance or design? چانس. Chance. یہ ہو چانس. گیا چانس. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا چانس. جی اولڈ ارتھ اور تھیا کا آپس میں کولیجن ہوتا ہے تو اس کا کچھ حصہ زمین پہ کتنا. رہتا ہے اور کچھ حصہ چاند بن جاتا ہے. اور وہ بالکل ایسے ہی جیسے سنوکر کا ایک ماسٹر سٹروک ہوتا ہے کہ ایک بال دوسرے سے لگ کے ڈیفلیکٹ ہو کے ایسی جگہ پہ رک جاتا ہے جہاں پہ آپ کی گیم آگے بڑھتی ہے, کہ اگر آگے پیچھے چلا جائے تو آپ کی گیم آگے نہیں بڑھے گی. یو ول ناٹ ہیو دی اینگل. سو اور تھیا اور ارتھ کا کولیجن ہوتا ہے, ایک حصہ اس کا زمین پہ رہ جاتا ہے, زمین یعنی کہ جو اب ہماری زمین ہے اس کا سائز اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں وہ ایک طرف ہمیں سورج کی شعاؤں سے اتنا پروٹیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارا جو سیارہ ہے یہ جلتا نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ اسے یعنی کہ اگر یہ بڑا ہو جائے تو اتنی زیادہ اس کو ریپلس کرے سورج کی شعاؤں کو کہ زندگی پھر بھی ایگزسٹ نہیں کرے گی. اگر یہ چھوٹا رہ جائے تو سورج کی شعاعیں اتنی اسٹرانگ ہو جائیں گی کیونکہ اس کی ریزسٹنس کم ہو جائے گی تو زندگی پھر بھی نہیں رہے گی. اور جو حصہ اس کا علیحدہ ہو کے چاند بن گیا ہے وہ بھی ایگزیکٹلی ایسی اس کی ٹلٹ اینگل ہوا ہے اور ایسی جگہ پہ جا کے وہ رکا ہے کہ زمین پہ زندگی اس نے اکوموڈیٹ کی ہوئی ہے. سو ناؤ وی ہیو ٹو پیسز آف ایویڈنسز, 3 بیسکلی, کہ ہماری زمین, اس کا سائز, اس کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز, سورج کا سائز, چاند کا سائز, چاند کا اینگل, ساری چیزیں اکٹھی کریں. وٹ ڈو یو تھنک, چانس, ایکسیڈنٹ یعنی کہ, یا کریشن؟ چانس. چانس. آپ کو ایک سیارے پہ زندگی وجود میں آنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ڈزنٹ میٹر آئی تھنک جتنی بھی چاہیے ہوں. That was a lot actually. اس لیے کہ فار فار ٹو لانگ آپ لوگوں کا نظریہ کارل سیگان سے لے یہ تھا کہ زندگی کا وجود صرف 2 چیزیں کو ریکوائر کرتا ہے, دیٹ از یور سن, the existence of it, and the distance from the sun. تو 2 چیزیں تو چانس ہو سکتی ہیں نا, کہ 2 چیزیں بائی چانس ہو گئی تو زندگی وجود میں آ گئی. جی ایسا ہی ہے. But now as the science goes on, تقریباً 50 کے قریب چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی اپنی جگہ سے ویریشن میں چلی جاتی ہے تو زندگی ایگزسٹ نہیں کرے گی. You want me to believe کہ یہ نیئرلی 50 چیزیں جہاں پہ کھڑی ہیں, جس پرسیجن کے ساتھ کھڑی ہیں, یہ سارے کا سارا ایکسیڈنٹل ہے. کیا ہوا؟ جا چکے ہیں خود ہی, انٹرنیٹ کا کوئی کیوں؟ ایشو ہے. لے ہونی تو گل سٹارٹ ہوئی سی نہیں چنگی. ریشنل بیسس پہ لیٹس ایکسپلور, لیٹس اسیوم کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے, کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے. لیٹس امیجن دیٹ. تو آپ کے نزدیک اس کا نظام کس طرح سے چلنا چاہیے اور کیوں چلنا چاہیے؟ اس کا نظام گورننگ لاز ہیں, پرنسپلز ہیں یونیورس کے جو کہ نظام چلا رہے ہیں. اور شور, گڈ ویری گڈ اسٹارٹ. یہ جو لاز ہیں کیا یہ کیپیبل تھے کہ یہ خود کو پیدا کر سکتے؟ اس کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہو سکتا. شور. لیکن اس کے باوجود آپ اپنی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہیں اور بغیر کسی تخلیق کے ہیں. میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ ہیں لیکن بغیر کسی تخلیق کے ہیں یا کسی تخلیق کے ساتھ ہیں, اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. بٹ لیکن دیکھیں نا, آپ کا دعویٰ تو یہ ہے نا کہ یہ کوئی نیسیسری نہیں ہے کہ کسی نے ان کو بنایا ہوا ہو. دیر فور جو آپ کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ خودکار طریقے سے یہ بنے ہوئے ہیں.
यही पोजीशन है ना आपकी? नहीं, मेरी ये पोजीशन नहीं है। मैं ये नहीं अच्छा, कह ये रहा कि पोजीशन है। नेसेसरी ये नहीं है कि ये इनको किसी ने बनाया हो या इनको किसी ने ना बनाया हो। मेरे पास उनका उसका एविडेंस नहीं है। ये ओके, पोजीशन सो व्हाट इज मोर लाइकली देन, गिवन द जो आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस है, कि क्या ये खुद ब खुद वजूद में आए होंगे? इज दिस मोर प्लॉजिबल, या ये ज्यादा प्लॉजिबल है कि इनको कोई ना कोई बनाने वाला तो होगा? मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं? ज़ाती एक्सपीरियंस की? नहीं, ह्यूमन हाँ, एक्सपीरियंस की, मेरा आपका किसी का भी। अच्छा। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस में अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर खुद ब खुद मतलब होती, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होती आई हैं, बट उनके पीछे भी कोई गवर्निंग लॉज़ या प्रिंसिपल्स थे। ठीक है? अंडरस्टैंड, आई एग्री विद दैट, बिल्कुल होते हैं, गवर्निंग लॉज होते हैं, लेकिन हाँ। वो गवर्निंग लॉज कैसे वजूद में आते हैं? दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। कैसे वजूद में आते हैं इसका जवाब मैं नहीं दे सकता ना, मेरे पास उसका आंसर नहीं है। ये लेकिन बात आप है ये किसको नहीं पता, तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ उसका? फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उसके बाद फिर मैंने आपसे पूछा ना कि व्हाट इज मोर प्लॉजिबल, कि उनका कोई क्रिएटर होगा, ये हाँ। ज्यादा बात आपको रैशनैलिटी के करीब लगती है, या ये रैशनैलिटी के ज्यादा करीब लगती है कि नहीं वो बस खुद ब खुद ही वजूद में आ गए होंगे? दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वली लाइकली है, तो मेरी नज़र में तो आई थिंक नहीं, दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वली लाइकली नहीं हो सकती। हाँ, मेरी नज़र, बिकॉज दोनों का नहीं पता तो दोनों इक्वली लाइकली है। समझ रहे हैं बात हम को? हम रैशनल बेस पे बात कर रहे हैं, तो प्योरली ऑन रैशनल प्रेमिस कि आप अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए किस नतीजे को ज्यादा करीब अज अकल समझ रहे हैं, कि ये लॉज, गवर्निंग लॉज खुद ब खुद बन गए होंगे, या इनको कोई बनाने वाला होगा? होगा, बिल्कुल। कोई बनाने वाला होगा। मेरे So मेरे this से is पूछे more तो right. मैं ये कहूंगा कि हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, ये आपने कहा कि ये गवर्निंग लॉज हैं, इसका मतलब ये है कि ये लॉज फाइन ट्यून्ड हैं, ये भी आप मानेंगे? फाइन ट्यून से क्या मुराद है आपकी? अगर वो गवर्निंग है तो इसका मतलब ये है ना कि उनका एक पर्टिकुलर आउटकम है, वो गवर्न कर रहे हैं कि उनके नतीजे में होने वाले, पैदा होने वाले तगयुरात किस तरह के होंगे। तो देखें, फाइन ट्यूनिंग हमेशा जब कहते हैं ना कोई चीज़ फाइन ट्यून्ड है तो उसके दो रिक्वायरमेंट होती हैं। नंबर एक ये कि वो चीज़ बजाते खुद फाइन ट्यून्ड है, नंबर दो ये कि उससे जो नतीजा हासिल किया जाना चाहिए वो नतीजा दे भी सके। जैसे मैं गिटार की स्ट्रिंग की मैं मिसाल दे रहा था कि वो स्ट्रिंग बजाते खुद फाइन ट्यून होनी चाहिए, कि वो गिटार का जो साइज है, जो उसकी बॉडी है, उसके अंदर फिट आनी चाहिए, लेकिन उससे फिर बाद में जो उससे हम सुर निकालना चाहते हैं उससे वो सुर निकले भी। ये हाँ, दोनों समझ चीजें गया। हम उसे कहेंगे फिलोसॉफिकली ये फाइन ट्यून्ड है। तो नंबर एक तो ये कि ये जो लॉज हैं ये मैथमेटिकली क्वांटिफाइबल हैं कि ये बजाते खुद फाइन ट्यून्ड हैं, पर देन इनका एक मकसद भी है, ये किसी मकसद को पूरा भी कर रहे हैं। मैं ऐसा काइंडली ही आप अगर इजाजत दें मैं आपके क्वेश्चन को स्टीलमैन करूं ताकि मुझे पता चले आप क्या प्लीज। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, जी जी। मुझे जो समझ में आई आपकी बात से, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लॉज फाइन ट्यून्ड है, या मतलब जो उनसे निकलने वाले जो नताइज हैं वो फाइन ट्यून्ड है। इसमें मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी करें कि क्या चीज जिसको आप फाइन ट्यून कह रहे हैं। दोनों ही हैं, लेकिन मैं दूसरे सवाल पे बाद में आऊंगा। अभी मैं लॉज की बात कर रहा हूं कि जो आप कहते हैं कि अकल ये कहती है कि अकल के नजदीक ये बात है कि ये लॉज बनाए गए हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या ये लॉज फाइनली ट्यून्ड भी हैं, फाइन ट्यून्ड हैं ये? दे आर वर्किंग एग्जैक्टली द वे दे हैड टू, इस सेंस में कह सकते हैं कि हाँ दे आर फाइन ट्यून्ड, दे आर फाइन और उससे ट्यून्ड। आगे पीछे यस, उससे आगे पीछे नहीं है, ऑब्वियसली उससे आगे पीछे होता तो ये यूनिवर्स ना होता, हम ना होते, यूनिवर्स में होता ये होगा। यूट्यूब ना होता, ये कुछ भी ना होता। सो ये एब्सोल्युटली दैट्स वेरी वेरी ट्रू। फंडामेंटल फोर्सेस अपनी जगह पे हैं, चारों की चारों बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं, राइट? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एंड एवरीथिंग एल्स। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स एज वेल, तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट होता है उसका, बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये भी मजे की बात है कि जो उसकी एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन के बावजूद कोई भी निज़ाम धर्म भरम नहीं हो रहा, बल्कि अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, विच इज टू से कि जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्स है वो प्रिसाइसली फाइन ट्यून्ड है कि वो काम कर सके हमारी रिपल्सिव फोर्स के साथ, राइट? बिल्कुल लुक्स सो रैशनली स्पीकिंग, अकल को सामने रखते हुए क्या ये लगता नहीं है कि ये कोई बड़ी जबरदस्त इंटेलिजेंस है जिसने सारा कुछ डिजाइन किया है? हाँ, बिल्कुल लगता है, ऐसा लगता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ऐसा ही है वर्सेस कि ऐसा नहीं है? आई वुड से इक्वली लाइकली है ये दोनों चीजों का होना।
Okay, या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता. हाँ. नहीं भी हो सकता. सो लेट्स पुट एवरीथिंग टुगेदर. मैं आपसे सवाल दोबारा करता हूँ कि अभी तक की जो हमारी गुफ्तगू है उसका नतीजा ये है कि ये कायनात के एक कायनात जो कि खुदा के बग़ैर चल रही हो तो वो क्यों काम करेगी. एंड द आंसर इज़ इसलिए कि इसके गवर्निंग लॉज हैं और अक़ल के नज़दीक ये है कि वो लॉज बनाए गए हैं और अक़ल के नज़दीक ये है कि इन लॉज का बनाने वाला के पीछे, इन लॉज के पीछे जो है एक हमें इंटेलिजेंस भी नज़र आती है. तो अगर हर चीज़ इंटेलिजेंस की तरफ पॉइंट आउट करती है तो ये फिर डिटरमिन करने में हमें क्यों दिक्कत महसूस हो रही है कि ये ज़्यादा प्लॉजिबल है कि कायनात और इसके अंदर के जो प्रोसेस हैं ये वाकई बनाए हुए हैं एज अपोज टू कि ये नहीं बनाए हुए. हाँ, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट किया जा सकता है कि ये बनाए हुए हैं ऐसे एज इट इज के. हाँ, एज इट इज के बनाए हुए हैं. सो नाउ वी आर एट द रीच एट द स्टेज के सेम पॉइंट. एक फिर के क्रिएटर है फिर. कैन वी एग्री टू दिस? पॉसिबिलिटी ज्यादा उस चीज की है कि कोई क्रिएटर होगा जिसने के इन लॉज को, इन कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स को और इन सारी चीजों को एज इट इज रखा होगा और फाइन ट्यून रखा होगा. Okay, good. Okay, fine. We are making very good progress. मेरा अगला सवाल आपसे, मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक पैराग्राफ में मुझे अगर एनालाइज कर दें जितनी अभी हमने बातें की हैं, आप इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कहें. जो मैंने अभी तक आपसे पूछा है उसकी समरी ये है कि इस कायनात का निज़ाम इसलिए चल रहा है कि इसके अंदर गवर्निंग लॉज हैं जो कि बने हुए हैं और वो फाइनली ट्यून्ड हैं और लग रहा है कि वो किसी ने बनाए हैं. इसके मुझे आप एग्जैक्टली अगेंस्ट एक एविडेंस दे दें या एग्जैक्टली अगेंस्ट आप मुझे इसके अपना एक व्यू दे दें कि स्टेप बाय स्टेप जो इन चीज़ों को निगेट करता हो. हाँ, तो इसका व्यू ये है कि बहुत सारी चीज़ें, इसका व्यू मेरा इसमें ये है कि मैं हिस्ट्री को देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें अलूजन आता है कि ये बनाई गई हैं, लेकिन एट द एंड उसका नताइज उसकी वजह से हमने बहुत, जिस तरह गॉड ऑफ द गैप्स का आर्गुमेंट है कि बहुत सारे खुदा उनकी वजह से वजूद लाए गए क्योंकि हमें लगता था कि ये चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन वो एट द एंड पता चला कि नहीं, ये बनाई नहीं गई. इसके पीछे ये गवर्निंग प्रिंसिपल था जिसकी वजह से ये चीज़ हुई. जैसे समुंदर कैसे काम करता है, चांद की ग्रेविटी की वजह से समुंदर की लहरें पैदा होती हैं, लेकिन ग्रीक सिविलाइजेशन में लोगों को ये नहीं पता था कि समुंदर की लहरें क्यों पैदा होती हैं, तो उन्होंने समुंदर का खुदा बना लिया, बिजली का खुदा बना लिया. बिजली का हमें आज पता है कि देयर इज अ, मतलब ठीक है, तो ये एक अगेंस्ट आर्गुमेंट है कि हमें अलूजन तो कई चीजों का मिल जाता है कि, और इस वजह से मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि जितने भी लोगों ने इल्यूजन बेस्ड खुदा बनाए हैं सारे के सारे झूठे हैं. आई फुली एग्री विद दैट पार्ट. लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ कि आपका ये कहना कि ये कायनात गवर्निंग लॉज पे बनी है, आप मुझे एक इसके काउंटर में ये मुझे बताएं कि इसके काउंटर में फॉर एग्जांपल कि नहीं, ये कायनात गवर्निंग लॉज पे नहीं बनी हुई है और वो लॉज फाइन ट्यून नहीं हैं और ये नहीं लगता कि वो किसी ने बनाए हैं. इसको आप अकल के साथ सपोर्ट करते हुए अगर एक पैराग्राफ में कर दे तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा. दोबारा पूछेगा ये क्वेश्चन क्योंकि मैं अभी तक श्योर अभी तक जो हमारी गुफ्तगू है उसकी समरी ये है कि ये कायनात इसलिए फंक्शनल है, इसलिए काम कर रही है कि इसमें गवर्निंग लॉज मौजूद हैं और वो लॉज फाइन ट्यून हैं और लग रहा है कि उनको इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया गया है और अकल के नज़दीक यही बात है कि उनको डिज़ाइन किया गया है. मैं इस कॉन्स्ट्रक्ट के एग्जैक्ट ऑपोजिट आपका व्यू लेना चाहता हूँ कि अकल को मेयार बनाते हुए क्या आप ये कह सकते हैं कि इस कायनात को, ये कायनात फंक्शनल नहीं है, इसमें कोई फाइन ट्यून लॉज नहीं है और उनको इंटेलिजेंटली ज़ाहिर नहीं डिज़ाइन किया गया और उनका कोई डिज़ाइनर नहीं है? इसको अकल के साथ सपोर्ट करते हुए अगर आप मुझे समझा दे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा. इसमें आप 2-3 पॉइंट दे रहे हैं. एक पहला पॉइंट आपका ये है कि ये कायनात फाइन ट्यून्ड है कि नहीं है, यूनिवर्स फाइन ट्यून्ड है, इससे मैं एग्री करता हूँ, ठीक है. दूसरी बात कि लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे डिसएग्री करें अकल की बुनियाद पे. नहीं, इसको मैं अगर आपको ज़हमत ना हो तो मैं साइंटिफिक बेस पे भी इससे डिसएग्री नहीं कर सकता, तो डिसएग्री नहीं कर सकते. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका. लेकिन अगर हम इससे अच्छा जी बताइए. दूसरा पॉइंट जो आपने कहा है कि ये फाइन ट्यूनिंग किसी जात ने की है जो कि इंटेलिजेंट है, वो वाला पॉइंट है, उस पे भी एज एन एग्नोस्टिक हम एग्री कर सकते. मैं मतलब
एग्नोस्टिक का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है, क्योंकि मैं सॉफ्ट एग्नोस्टिक हूँ, तो यही पॉइंट होता है कि इफ देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड तो कहीं कभी ना कभी जाके हमें उसका सबूत मिल जाएगा, या लेकिन तब तक हम साइलेंट रहेंगे उस पॉइंट पर कि हम ये कोई क्लेम नहीं करेंगे कि गॉड है या नहीं है। जब सबूत मिल गया तो हम मान लेंगे उस चीज को। तो ओके, उससे मैं फेयर बात। अगरचे जो फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन एग्नोस्टिसिज्म की है वो इसके ऑपोजिट है, बट फाइन, लेट्स नॉट मेक एन इशू आउट ऑफ इट। जब आप ये कहते हैं कि साइंटिफिकली स्पीकिंग आप इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मुझे अकल के साथ सपोर्ट करते हुए ये चीज़ समझा दे, तो आपने कहा कि नहीं भाई, इससे तो मैं एग्री नहीं करता, ऐसा ही कहा आपने? फाइन ट्यूनिंग से एग्री करता हूं मैं, और Agree करते गॉड हैं। के आर्गुमेंट से भी एग्री करता भाई हूं अभी कि गॉड, अच्छा फरमाइए, गॉड के आर्गुमेंट से आप एग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूं कि गॉड हो सकता है। हमारा हम उस पे आते हैं। देखें, हम कोई ब्रेक बीच में से मिस नहीं करना चाहते ना, ये ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स की तरह है कि हमने एक जवाब के लिए सारे स्टेप्स हमने यूज करने हैं, क्योंकि हम रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं ना आप। अच्छा, आपसे ये सिर्फ आपने ये बात एक कही, मिनट बीच में ऐड कर सकूं ताकि मैं, क्योंकि फरमाइए। आपने कहा फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग एग्नोस्टिज्म की टोटली डिफरेंट होती है, तो किसी भी, ये बड़ा मसला होता है, किसी भी चीज की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इवॉल्व करती है ओवर द टाइम, उसमें फिर क्लासिफिकेशन भी आती रहती है। चले ये वो गैर जरूरी हाँ, बात है। देखें, उससे हम बहस नहीं करें ना, वो हम बड़े दूर हाँ, निकल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इतने अच्छे तरीके से हम एक टॉपिक पे बात करें तो हम उस पर रहते हैं। जो आपने बात कही थी कि मैंने आपसे पूछा था कि अब फिर सारी आपकी बात कि ये कायनात फंक्शनल है क्योंकि इसके पीछे गवर्निंग लॉज हैं, वो इंटेलिजेंटली डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये इंटेलिजेंटली डिज़ाइन हैं। तो अब यहाँ से फिर मैंने आपसे पूछा कि फिर इसके बाद हम क्रिएटर के स्टेज पे पहुंच गए, तो आपने कहा कि वेल पॉसिबिलिटी है। तो मैंने आपसे कहा कि फिर आप मुझे इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट एविडेंस दें, तो आपने कहा कि नहीं, वो मैं नहीं दे सकता। मैं एग्री करता हूँ कि जो हमने पहले बात कही थी वैसे ही है कि फाइन ट्यूनिंग है, राइट? अब तक हम इसी नतीजे पे पहुंचे हैं। मैं फाइन ट्यूनिंग से एग्री करता हूँ, बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग पे एग्री करते हैं। तो अब हम इस नतीजे पे आ सकते हैं ऑन द बेसिस कि अकल को सामने रखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि क्रिएटर है, और अकल को इस्तेमाल करते हुए हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि क्रिएटर नहीं है, क्योंकि हमने सारे के सारे स्टेप्स करके देख लिए। तो क्या आप हम इत्तेफाक कर सकते हैं कि क्रिएटर तक हमारा इत्तेफाक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे? क्रिएटर तक हमारा क्या इत्तेफाक है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये आप सवाल पूछ रहे हैं? जी जी, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ओके, मैं दोबारा से दोनों समरी सामने रख सकता हूं कि हमने एक रूट लिया कि कायनात फंक्शनल, उसके अंदर गवर्निंग लॉज जो कि फाइन ट्यून्ड, जो कि लगते हैं कि वो क्रिएटेड हैं, और ये लग रहा है कि ये ज़्यादा प्लॉजिबल है कि वो वाकई क्रिएटेड है। जो लग नहीं रहा बल्कि वो क्रिएटेड हैं। इसके अल्टरनेटिव में, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, इसके अल्टरनेटिव में कि हम ये नहीं कह सकते कि ये कायनात फंक्शनल नहीं है और इसके अंदर गवर्निंग लॉज नहीं हैं और इसके अंदर, और वो फाइनली ट्यून्ड नहीं है, और ये कि उसको किसी ने क्रिएट नहीं किया। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट लाइंस हमने फॉलो की हैं। तो इसके बाद हम इसी नतीजे पे ही पहुंचते हैं कि चलो क्रिएटर तो है। Did I get that right? मैं उस एक मिनट मैं इसमें ऐड करता हूँ कि आप बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन आप इसकी मल्टीपल स्पेकुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से एक मल्टीवर्स की थ्योरी भी है और भी चीज़ें हैं। तो आप किसी भी उसमें जा सकते हैं कि व्हाई दिस यूनिवर्स इज फाइन ट्यून्ड, मल्टीवर्स की वजह से भी हो सकती है। Sure. व्हाई ठीक है, दिस बिल्कुल यूनिवर्स सही इज है। फाइन ट्यून्ड, गॉड की वजह से भी हो सकती है। तो एज अ वीक एग्नोस्टिक मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हाँ, क्रिएटर कोई हो सकता है जो जिसने के क्रिएट किया। तो मैं उस तरफ उस डायरेक्शन में जाता हूँ। कैसर भाई, इधर ठीक है। इस बात पर इधर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करने की गुजारिश मेरी सुन लीजिएगा। 23 मिनट्स ऑलरेडी एक पार्ट जो है वो कंक्लूड हो चुका है। एक्स मुस्लिम भाई ऑलमोस्ट सारे चैनल्स पर चक्कर लगाते हैं और ये एवरी वीक आते भी हैं। तो अगर आपकी ये बात दोबारा से अगर स्टार्ट हो सके, जहां से अगर आप उनको सेकंड फेज में लेके जाना चाह रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि पीछे काफी सारे कॉलर्स बैठे हैं और उनको तकरीबन 40-45 मिनट से अबव हो गया है। तो कैसे भाई, अगर दूसरी बात चलेगी। अब उनको हाँ। वो इसीलिए नाम बदल के आए थे, ज्यादा टाइम ले लें। अब उनको क्या पता कि हमें पता चल गया है, तो बस अब बेचारे फंस गए हैं जी। नहीं, मैं चाहती हूँ कैसर भाई का डिसीजन है। कैसर भाई आप जैसे बताइए। आप मुनासिब समझे। अच्छा, एक्स मुस्लिम भाई ऐसे एक काम करते हैं, काफी हमारी अच्छी प्रोग्रेशन रही है। तो कैसे भाई अगर एक मैं बात आपको ऐड करना चाह रहा हूँ, दिस इज नॉट गुड।
इज इट अ क्राइम कि मैं अगर डिफरेंट चैनल्स पे आ रहा हूँ या मैं यार नहीं आ टची टची सर टची मैं ना हो, एक्स मुस्लिम मैं भाई मैं टची ना नहीं हो। नहीं आमिर यू भाई यू आर गेटिंग टची तो आमिर मैं आमिर तो भाई नहीं आमिर भाई नहीं, बहुत प्लीज अच्छे मैंने सर ये मुझ पे बात एहसान रखी है, मैंने ये आमिर बात भाई रखी है तो मुझे प्लीज एक्सप्लेन अच्छा करने भाई दीजिएगा। मुझको मैं इसलिए कह रही थी कि हमारे भाई को बार बार मौका मिल जाता है, कई लोग ऐसे नए कॉलर्स बैक स्टेज बैठे हैं जो फर्स्ट टाइम आए, तो आप माशाल्लाह हर जगह पहुंच मैं जाते हैं समझता और हूँ ये वो अच्छी बात को, बात है, लेकिन तो इसमें कोई अलीना बुरी बात नहीं है। अब आप मेरे अलीना भाई मुझे इसको हाँ यहीं पे ठीक खत्म कर दीजिए प्लीज, ठीक है मैं ज्यादा टाइम में क्योंकि वेट कर रहा हूँ ना, मॉडरेशन भी ठीक है करनी होती है। अच्छा थैंक यू अब ऐसा है आई एक्स एग्री मुस्लिम भाई के चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ऐसा है कि मैं पीछे प्राइवेट चैट में मैं अपना स्काइप की आईडी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप काइंडली अगर आप मुझसे उस पर रब्ता कर लें और मैं साथ अपना ईमेल एड्रेस भी मैं कर देता हूँ। आपसे बहुत अच्छी हमारी प्रोग्रेशन हुई है आज बात की, तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम किसी लॉजिकल जबरदस्त पॉइंट कैसर पे भाई, हम ले माशाल्लाह जाएं। जबरदस्त। तो कैसर भाई, आई थैंक यू जस्ट सर। वांट टू ऐड अ पॉइंट इन दैट कि मैं भी ऑलरेडी, आपने मुझे ईमेल दी थी, मैंने उस पर आपको कांटेक्ट किया था, तो ऑब्वियसली मैं कनेक्ट करूंगा दोबारा से आपसे इंशाल्लाह। दोबारा कीजिएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिर अगर मैं उसको नहीं देख सका तो मैं बहुत माजरत। मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं अपना क्या उसे कहते हैं, आप मुझे भेजें ईमेल, मैं रब्ता करता हूँ आपसे। ठीक होगा, ओके जी, चलिए Have a बहुत nice बहुत day. शुक्रिया। कैसर भाई ये जो आपका ईमेल या स्काइप वाला सीन ये बड़ा जबरदस्त रहेगा, खास तौर पे ये एक्स मुस्लिम भाई जिस तरह आपकी बात चल रही थी, ये तो बड़ी तफसील से घंटों पर मुश्तमिल बात, ठंडे मिजाज के साथ जो आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी मजे की बात है, यकीन करें, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पिक करना है, तो बहरहाल वो जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। चले आई एम गोना लीव, जी आप थैंक यू, जो है वो अपना थैंक यू सर, कंटिन्यू। थैंक एक्स यू मुस्लिम बहुत भाई मेरी तरफ से भी सॉरी, हाँ अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, मेरी तरफ से सॉरी मेरा भाई।